Okay, Bismillah Rahman Rahim. This is our last unit, and the virtual memory, the topic which we have already read in OS class. You can see those videos where we have this paging and segmentation, but I don't remember कि मैंने कितना पढ़ाया था उधर, ठीक है ना? So that's why I will come back to that later. Rutba Khan has just come up. Okay, so this is our last unit. So where we say input output organization. So why the heck we need an organization for the input output is the first question which comes in the mind, right? Why we need input output organization? Can anybody talk about this? Why we need input output organization? Why is it so? With that we need to organize what is also called as interfacing. We sometimes call as interfacing, input output interfacing. So what we need typically is an interface and module, a different module. And right now, these days, we have a totally different processor which does the job for us, right? Not just a passive module, but a dedicated processor having its own RAM, cache, and everything to do input output. As you could see, graphic processor तो आपको सबको पता ही है ना? We got a graphics card. What is that? That is input output processor, a separate processor which does nothing but graphics. We have the processors today for sound, because sound has evolved so much. We're going to Dolby Digital and so on. We need a lot of processing to be done on our sound. Okay, so today we not only have the input output just a passive modules, but we have a dedicated processors. But why the heck we need that? Why don't our CPU just do that for us? So we will be reading all these things. What is interrupt, what is direct memory access, the buses, circuitry, and a lot of things, and a lot more like synchronous, asynchronous transfers, and memory mapped input output, and separated input output, and so on. That will be our first topic from the syllabus, separated versus memory mapped input output. We'll talk about that. But mainly we have a CPU, and it got to talk with two guys. On one side is talking with the memory, on the other guys is talking with the input output devices. So we have input output devices. There could be input devices, there could be output devices. You already know these things, but there could be also be input output devices. We have both. Can you name one which is both input output device, which is input out device as well as output device? Very simple, but you can. What? I didn't got it. Somebody said something. I mean, we have input devices where, like keyboards and all, monitors, output devices, printers and all, plotters, vagera, vagera. What about the input output? They're both input output. Anybody have an idea? Drive. Yeah, flash drive or HDD, hard drive or flash drive. Because on a flash drive or HDD, you write as well as read. Okay. Okay, because you put something on it and you read it from it. Is it? So this is output device as well, input device. So why we need an interfacing? Because this is a processor, it has to talk with the main memory, because it's talking all the time with the main memory, and it all the time has to talk with the input output devices. Okay, so we say that, hey boss, if it is a CPU, have some kind of a module and interact with the input output devices. Don't talk directly with the input output devices, rather put some module in between. That what is called as IO interface. So we have here IO interface. Any idea why we need an IO interface? Why don't we directly connect with IOs? Yes. Sir, processor की speed ज़्यादा होती है, CPU processor की speed ज़्यादा होती है. Biggest thing, the process speed is huge. Okay. If we connect it to direct, what will happen by that? मसला क्या है? होने दो, IO slower है, इसकी speed ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा? सर डिले आ जाएगा ना, स्पीड और इसमें प्रोसेस कम, स्पीड ज्यादा है. स्पीड ज्यादा है तो होने दो. सर आइडल हो जाएगा ना, प्रोसेसर आइडल रहेगा बहुत टाइम के लिए. प्रोसेसर आइडल कैसे रहेगा? उसने भेजना अपनी स्पीड से, वो भेज रहा है, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू सुन नहीं पा रहा. फॉर एग्जांपल मैं बड़े तेज से बोल रहा हूँ, तू सुन नहीं पा रहा, तेरी प्रॉब्लम. सर हम भेज रहे हैं ना स्लो, सर हम स्लो भेज रहे हैं ना. सीपीयू स्लो तो भेज ही नहीं सकता ना, सीपीयू का अपना क्लॉक साइकिल है, स्लो भेज नहीं सकता. इनपुट डिवाइस इनपुट दे रहे हैं ना हम स्लो, तो प्रोसेस स्पीड कैच नहीं कर पाता. इनपुट की बात आप कर रहे हो? आप इनपुट की बात कर. हाँ, इनपुट में तो डिले हो गया. मैं आउटपुट की बात कर रहा था. आउटपुट में क्या हो जाएगा? यू आर राइट. सर डोंट नो. आउटपुट में क्या होगा कि अगर आपने भेजा, वो पकड़ ही नहीं पाएगा उसको.
क्योंकि अगर आउटपुट डिवाइस स्लो है, वो जैसे मैं अगर बहुत तेज बोलूंगा, ठीक है ना, आप पकड़ ही नहीं पाओगे मैं बोल क्या रहा था, अगर बहुत तेज बोला मैं, ठीक है ना। सो वो आपकी प्रॉब्लम है। तो आप क्या करना चाहोगे इस सूरत में? आई वॉन्ट यू गाइज टू इवॉल्व अबाउट व्हाट वी डू टुडे। अगर मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ, बड़े ना, दैट्स अ वेरी ग्रेट स्पीड, एंड you will never get what I'm saying. So what will get? You will get a buffer in between. What you say is, अब मारो तेज से मगर बफर में डालो, और हम बफर से आराम से लेंगे, है ना, अपनी स्पीड से हम बफर से लेंगे। बस में आई। अगर वहां से पानी आ रहा है बड़ा तेज और आपको लेना है, वो इतना तेज आ रहा है कि आप पकड़ नहीं पा रहे, व्हाट विल डू? आपकी स्पीड नहीं है कि आप ले जाओगे, व्हाट विल डू? यू विल कीप अ बफर इन बिटवीन। चलो बफर में डाल, आप तेजी से बफर में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बफर से अपनी स्पीड से लेंगे। सो दिस इज द वन थिंग, ओके, दिस इज वन थिंग। एंड जैसे साहिल ने बोला, दिस अ वेरी गुड पॉइंट, कि अगर इनपुट कर रहा है, अब इनपुट कर रहा है टोटाइज और यहां से रैबिट, ठीक है ना, सीपीयू की स्पीड बड़ी फास्ट, और इनपुट ले रहे हो आप कीबोर्ड से। कीबोर्ड तो सेकंड में आप ए बी सी पता नहीं क्या लिखोगे, ठीक है ना, आपकी स्पीड कितनी फास्ट होगी, तो वो तो बहुत ही स्लो है, दैट इज unbelievably slow than the CPU. Now what is CPU all the time doing? It's idle. जैसे साहिल ने कहा, you can open up your mics and talk with me, ठीक है ना, it will be totally idle. वो बैठा है ना, वो बंदा आ रहा है यहाँ बोल रहा है, वो आ जा, वो आ नहीं रहा, वो आ रहा है, उसने स्लो मोशन में कैमरा लगा के रखा है, ठीक है ना। सो ये चीज भी ठीक नहीं है। तो इतने में टाई नहीं कर रहा है, हमें सीपीयू को टाई नहीं करना, ये बातें हमें दिमाग में रखनी है। वी कैन नॉट टाई द सीपीयू विद द इनपुट आउटपुट एट ऑल। अगर इनपुट आउटपुट की वो बफर भी रख दिया, वो कुछ भी कर दिया, वी कैन नॉट टाई इट, ठीक है ना। सो वी हैव टू इवॉल्व दिस स्ट्रक्चर सो दैट क्या हो कि जब तक इनपुट आउट, अब इनपुट आ रहा है लेकिन करें क्या, तो बताएं सर कोई मुझे। इनपुट तो पकड़ना है ना, इनपुट स्लो आ रहा है लेकिन पकड़ना तो है, करे क्या, सीपीयू करे क्या? व्हाट शुड वी डू? थिंक, यूज योर ब्रेन। या आई एम ट्रिगरिंग योर ब्रेन ना। मैं कह रहा हूं कि इनपुट तो लेना है ना, लेकिन इनपुट लेना है, करे क्या? वो स्लो है तो कर क्या सकते हैं, हम राइट टाइप कर रहे हैं, तो इतनी हमारी स्पीड है। ह्यूमंस आर वेरी स्लो, वी कांट स्पीड अप, अगर हम स्पीड पता नहीं कितना करेंगे, सीपीयू का मैच कर सकते हैं हम, लेकिन इनपुट तो लेना है ना उसको। मैं कोई काम कर रहा हूं, उसको इनपुट तो लेना है, तो करे क्या, क्या कर सकते हैं? सीपीयू को तो स्पीड मैच हाँ, करने के लिए एक और चीज कर सकते हैं, मेमोरी डाल सकते हैं स्पीड मैच करने के लिए। स्पीड मैच तो यहाँ हो से ही हम नहीं सकती इस इनपुट, सूरत में, स्पीड मैच तो इनपुट में हो ही नहीं सकती, सर क्योंकि मैं बीच लिख में रहा कुछ हूँ, मॉड्यूल ठीक है, ऐसा मैं रखेंगे टाइप जो कर रहा स्पीड हूँ, मैच करे। नो, हाउ कैन इट हैपन, मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है ना, इट इज वेरी स्लो। और सीपीयू तो बैठेगा ही, उसको तो इट इज लाइक, हमारे पास मैसन एक है, वो पेंट करेगा, उसको पेंट करना है, लेकिन पेंट लाल चौक से आ रहा है, कतरा कतरा, वो करेगा क्योंकि वेट तो करना है ना, पेंट तभी करेगा जब पेंट आएगा, तो कर क्या सकते हैं? तो हम पग छोड़ेंगे बफर में नहीं, रखे, हम पेंटर को छोड़ेंगे बफर नहीं। में, हाँ, यस, क्या करेंगे, कौन बता रहा है? उसको भी बफर में रखेंगे, बफर में बफर का रखने यूज से क्या होगा? करेंगे, बफर में रखने, बफर तो हो गया जब आउटपुट करेंगे, जमा कर आउटपुट लेंगे एक हिसाब से बफर हो गया ना। पूरे डेट। बोल कौन रहा है पहले, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। Who is saying? उबैद उबैद सर मैं, अच्छा, वो है टॉप में, हाँ ठीक बाद है। में क्या है ना, एक यस सर, एक लेकिन आपको बाहर से कुछ शायद ऐलान चल रहा है। मैं कह यस रहा सर, एक ही जगह वैक्सीन का। जमा अच्छा, करेंगे। वैक्सीन का, फिर तो पकड़ के ले जाएंगे तेरे को, ठीक है। सो लिसन, व्हाट हैपेंस इज कि जब इनपुट आ रहा है वो बफर में डालेंगे, तभी तो वेट ही कर रहा है ना बंदा, जब तक बकेट भर के नहीं आए। चलो मैं बोलूंगा पूरा बकेट भर के आएगा मैं ले लूंगा, लेकिन मैं बकेट का वेट ही तो कर रहा हूँ ना। लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं सीपीयू को, हम सीपीयू को बोलेंगे, जो पेंटर मेरा है, जो पेंटर है, वो कह रहा है कि आने दो पेंट, तब मैं पेंट करूंगा। मैं कह रहा हूँ तो पेंट छोड़, जब तक पेंट आ रहा है तब तक तू जल्द ये काम कर, तो दूसरा काम कर, चल सफाई कर। बस में आ रही है। पेंट तो यहाँ से उसमें तो कर नहीं सकते, मैं टाइप कर रहा हूँ तो स्लो है ही, इसमें क्या कर सकते हैं? उसमें बफर डाल के क्या करेंगे, वो बफर में जाएगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सीपीयू को बोल रहे हैं, ओ भाई साहब तू आइडल मत बैठ, तू दूसरा काम कर, मैं मल्टीटास्किंग करनी है। यहाँ से मेरा जूम चल रहा है तो वहां से मैंने पीपीटी खोली हुई है, यहाँ से मेरा म्यूजिक चल रहा है तो यहाँ से मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो वहां से वो कर रहा हूँ, वो सारे काम हो रहे हैं ना। तो जब तक तेरा इनपुट आउटपुट आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, तू उधर कर, तो उसे इंटरप्ट ड्रिवन इनपुट आउटपुट कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसकी अराइव कर रहे थे। तो एक चीज होता है स्पीड,
एक चीज होता है स्पीड, ठीक है, रुतबा खान, वेट आई विल एडमिट दैट। एक चीज तो स्पीड सीधे समझ आ रहे हैं, स्पीड मिसमैच है, इनपुट आउटपुट और सीपीयू की स्पीड बहुत मिसमैच है, तो इसलिए कुछ चाहिए बीच में जो ये करे। और दूसरा और भी चीजें हमारे पास है, मैंने स्लाइड डाला था शायद, देखूंगा एक मिनट। Yeah, this is called input output problems we have. Now we have wide variety of peripherals. अभी आपने एक किस्म का पेन ड्राइव लाया, कभी दूसरे किस्म की पेन ड्राइव लाया, अब इसी में मैं ये देखो, इसी यूएसबी में मैं ये राइटिंग पैड डाल रहा हूँ, ठीक है ना, इसी यूएसबी में कभी मैं कुछ और डाल लेता हूँ, ठीक है ना। अब इनपुट आउटपुट अगर हम एक काम करें कि हमारा प्रोसेसर जो है, क्योंकि अगर हमने मॉड्यूल हटा दिया, अगर हमने ये बीच वाला मॉड्यूल हटा दिया, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अगर सीपीयू है और बीच में आईओ मॉड्यूल है, आईओ मॉड्यूल, और यहां से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, पेरिफेरल्स, ये आईओ डिवाइसेस जितने भी सारे होंगे वो सारे आईओ डिवाइसेस, ठीक है ना, यहां से। अब अगर मैंने ये हटा दिया, क्योंकि आपको आईओ डिवाइस के साथ बात करनी है, सीपीयू को बात करनी है ना इसके साथ, सो सीपीयू शुड बी नो हाउ टू हैव अ नो राइटिंग एंड ऑल दिस, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लॉजिक। इसकी जगह मैंने यूएसबी भर दिया ना, फ्लैश ड्राइव भर दी, जो उसके साथ काम करना है वो इसके साथ नहीं करना है, एंड सीपीयू हैज टू नो ऑल ऑफ दिस थिंग। सो अगर मेरे पास इनपुट आउटपुट मॉड्यूल नहीं है, दैट मींस वी हैव टू बिल्ड सीपीयू इन सच अ फैशन दैट इट कैन टॉक with the pen drive, with the flash drive, with the external keyboard, with whatever कैमरा डाल रहा हूं मैं इसमें, मैं कभी प्रिंटर डाल रहा हूं इसमें, मैं कभी ये डाल रहा हूं इसी यूएसबी में, मैं इतनी चीज सारी चीजें डाल रहा हूं, ठीक है ना। Now this USB has to be dedicated to printer only, this USB has dedicated with this pen drive only, flash drive only, or this writing pad only, ठीक है ना। तो अगर कल जाके मैंने, चलो मैंने बना भी दिया, मैंने 2-4 यूएसबी बना दिए, यानी कि सीपीयू को इंटरेक्ट करा दिया किसके साथ, बेसिकली यूएसबी तो हट जाएगा ना, क्योंकि मैं सीपीयू को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा हूं पेरिफेरल्स के साथ। उसका मतलब ये है कि वो लॉजिक जो बात करने का है कि कैसे बात करेंगे वगैरह वगैरह, वो सर्किटरी वो सीपीयू में बनानी है। कल जाके आपने दूसरा बना दिया तो आपको सीपीयू उठा के फेंकना है, नया लाना है जिसको वो फंक्शनैलिटी होगी। पास में आ रही है। जैसे आपका पुराना टीवी था उसमें HDMI नहीं था, अब HDMI आपको लगाना है तो वो टीवी काम ही नहीं करेगा क्योंकि उसमें लॉजिक उसका है ही नहीं, ठीक है ना। सो वी हैव टू थ्रो इट एंड गेट न्यू। सो हमें जनरल पर्पस बनाने के लिए, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट वेराइटी ऑफ पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स बहुत सारे हैं, उनका फॉर्मेट डिफरेंट है, दे टॉक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपने एक बंदा लाया, वो ट्रांसलेटर लाया, वो चाइनीज से इंग्लिश करता है, तो उसमें वो लॉजिक बना दिया, अगर वो सीपी में ही हमने डाल दिया, ठीक है, तो अगर अब यहां से आगे जापानीज, आपका सीपीयू काम ही नहीं करेगा। सो हम कहते हैं सीपीयू तो इन चीजों से हट, जो ये इनपुट आउटपुट किससे है ना, इनके साथ तू मत रह, तू अलग ही रह, तो अपना प्रोसेसिंग कर। जो ये सारा किस्सा है ना, ये लॉजिक जो है इनपुट आउटपुट का, पेरिफेरल्स का, मेमोरी का, वो हम सारा डालते हैं किसमें, इस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में। और हम इस हद तक आज आ गए हैं कि इनपुट आउटपुट मॉड्यूल बजाते खुद एक प्रोसेसर है, जो कि डेडिकेटेड प्रोसेसर है इनपुट आउटपुट करने के लिए, ताकि हम इस सीपीयू को बिल्कुल फ्री करें। भाई तू कर ही नहीं, तो अपना काम कर, ठीक है ना। लेकिन तब भी ही इज द बॉस एंड ही विल व्हाट्स कॉल्ड इंटरप्ट मैकेनिज्म, वेयर वी विल सी टू दैट दोस थिंग्स। लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ब्रेन फिल कर रहा हूं इन चीजों से कि व्हाट वी शुड डू, ठीक है ना। वी विल डू इट टेक्निकली एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ इट। सो डिफरेंट स्पीड भी है और डिफरेंट फॉर्मेट्स भी हैं, तो दो चीजें आ गई, स्पीड भी है डिफरेंट फॉर्मेट्स में, क्योंकि मुझको पता है कि ऑल स्लोअर देन सीपीयू एंड रैम, क्योंकि जितने भी आउटपुट इनपुट आउट डिवाइसेस हैं, they can never catch the CPU or even the RAM. So what we need, we need input output module. ये ऐसा है ना कि जो मेन काम करने वाला है, जैसे मैंने कहा पेंटर है, मेन काम करने वाला है, पेंट कर रहा है, इसका काम है ये। लेकिन जो वो बाजार से पेंट लाना वगैरह, मैं अब पहले मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं भाई तू ही पेंट ला, जा ला बाजार से पेंट, जाके लाल चौक जा, वहां से पेंट देख, वहां बार्गेनिंग भी कर और फिर वहां से चूज भी कर।
तो पेंट का काम, जो असली काम है पेंट का, वो होगा, क्योंकि पेंटर आपका इनपुट आउटपुट में लगा है, वो तो पेंट लाने में लगा है ना। उसको मैक्सिमम टाइम यानी कि ज्यादा टाइम, जितना पेंट में नहीं लगा उतना लाल चौक में पेंट लाने में लग रहा है। मैं इसको कर रहा हूं, नहीं तू तू पेंट कर, तू उधर ही बैठ, मैं एक अलग बंदा खड़ा करता हूं जो ये पेंट का सामान लाएगा वगैरह 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 कर। अब यहां से जो दुकानदार है वो चाइनीज बोलता है, कोई जापानीज बोलता है, कोई ये बोलता है। तो अगर आपका पेंटर को जापानीज से लाना है तो उसको जापानीज पहले सीखनी है, चाइनीज सीखनी है। तो यानी कि सीपीयू जो है आपका, यहाँ से इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, उनके फॉर्मेट भी डिफरेंट है। वो कोई फ्लैश ड्राइव है, उसमें उसमें अलग चीज है, कोई यहाँ पे इसमें मैं राइटिंग पैड बोल रहा हूँ, इसका अलग किस्सा है, ठीक है ना। सो ये जो लॉजिक सारा है कि मैं इस राइटिंग पैड से काम कैसे करूं, इस फ्लैश ड्राइव से, इस प्रिंटर के साथ कैसे काम करूं, मुझे वो सीपीयू में बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो सीपीयू एक जनरल पर्पस बनेगा, और बीच में जो मॉड्यूल है इसमें वो हमें सोचना पड़ेगा कि हम इसमें कैसे डालेंगे वो जो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाई वी नीड एन इनपुट आउटपुट मॉड्यूल व्हिच विल टॉक विद द पेरिफेरल्स एंड गेट्स फ्रॉम दिस साइड व्हाटएवर सीपीयू नीड्स। okay, maybe we have different formats here, as you could see flash drives working different। आपके पास कोई पेन ड्राइव है, कोई कुछ है, कोई प्रिंटर है, तो प्रिंटर में प्रिंट करने का है, ठीक है ना। तो ये सारा किस्सा जो लॉजिक है कि प्रिंटर के साथ कैसे क्या लॉजिक लगे, कैसे काम करना है उसके साथ, इनपुट आउटपुट डिवाइस से कैसे काम करना है, वो हम इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में रखेंगे, ठीक है ना। और यहां से वही किस्सा आएगा जो ये काम करता है, जो सीपीयू समझता है। That's a general purpose. So it makes us our system very diverse. We can do it, you know, एक स्पीड मिसमैच भी हो जाएगी, उसमें भी पंगे हैं, और भी सारी चीजें होंगी। तो इसलिए हमें इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की जरूरत है। So question is now why we need input output module. Okay, so you understanding this point now? Now what is the number one? Because we have wide variety of peripherals. What has happened by that? It is impractical to incorporate the whole logic within the CPU. So अगर मैं within the CPU उसको लॉजिक को नहीं लगाऊंगा, मैं वो लॉजिक कहाँ पे लगाऊंगा? लेकिन लॉजिक तो लगाना पड़ेगा ना, इनपुट आउटपुट से बात तो करनी है ना। So where will be that logic then? If it will not be in CPU, IO module. it will be in the input output module. Does it make sense? Yes, sir. So why do we need input output module? Also because there is a speed difference, ट्रांसफर रेट बड़ी डिफरेंस है। जो आपकी डिवाइसेस है और जो आपका सीपीयू है, इट इज इम्प्रैक्टिकल टू कनेक्ट देम एंड सिंक्रोनाइज देम। ओके, सिंक्रोनाइजेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दे यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स, डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूज डिफरेंट फॉर्मेट्स। वी कैन नॉट बिल्ड होल लॉजिक इन द सीपीयू बिकॉज आवर सीपीयू विल बी देन, अगर दूसरा डिवाइस आ गया तो लिटरली यू हैव टू थ्रो इट ऑफ, ठीक है ना। बात में आते हैं, अगर आपके पास पता है कि पुराने जो डेस्कटॉप्स होते थे उनमें हमारे पास होते थे पीसीआई चैनल्स, उनमें हम कार्ड्स डालते थे ताकि डिफरेंट, जैसे मुझे टीवी लगाना है अपने इसके साथ, लाइक वी हैव टुडे यूएसबीज, हमारे पास यूएसबी आ गया, पीसी पे हमारे पास पीसीआई स्लॉट्स होते थे इनमें डेस्कटॉप्स में। अब डिफरेंट इनपुट आउटपुट, जैसे टीवी देखने, मेरे को टीवी ट्यूनर कार्ड हमने उस पीसीआई स्लॉट में लगाया, मैं टीवी देख सकता था। नाउ a different mechanism, different logic to talk with the TV tuner and get the signal and get the TV on the monitor. It was totally different. अगर मेरा ये होता कि नहीं जी मेरे को इसमें ही करना है, किसमें, सीपीयू में ही, तो टीवी देखने के लिए मुझे नया सीपीयू लाना पड़ता। अब मुझे नया सीपीयू नहीं लाना, I just get a new interface, input output interface. Do you understand what I'm saying? मुझे अब टीवी देखना है ना, तो मुझे अब सीपीयू नया लाने की जरूरत नहीं है, बस इंटरफेस जो है मेरा आईओ इंटरफेस वो एक दूसरा लाना है, वो यूएसबी के साथ कनेक्ट करना है, या हम कहते हैं भाई इस लगा यूएसबी डोंगल, तो आपको वहां से आ जाएगा वो टीवी, ठीक है। आपने यूएसबी डोंगल लगा ली, सो उस वो यूएसबी डोंगल जो मैं लगा रहा हूं वो है क्या, फिर दैट इज दैट आईओ मॉड्यूल, दैट इज इनपुट आउटपुट, वो बन गया हमारा इंटरफेस। लेकिन सीपीयू को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर हमने ये लॉजिक सीपीयू में ही डालना था तो मुझे डिफरेंट चीज काम करने के लिए डिफरेंट सीपीयू चाहिए था, टोटल लैपटॉप ही चेंज करना पड़ता। सो दैट वाज वेरी बैड। सो अगर मेरे को कुछ और चाहिए, कुछ और काम करना है, सो आई विल यूज आई विल हैव अ सेपरेट IO module or interface that I can add. I can add them. I can add as many as I like if I have totally different devices and different things to do. So ये इससे हमारा जो है काम बड़ी आसान
अच्छा होगा इससे. Does it make sense what I'm saying? So what will be the input output module? If we say we will add up the input output, we understand now why we have input output module. I guess everybody is on the same page, that we understand why we need input output module. Now, what else we can have is what will that be? That will be interface to CPU and memory, interface to one or more peripherals. So we not only need an interface from CPU to memory, this is memory, so we need an here interface or input output module, and we also need an interface to connect with different IO input output peripherals. So there could be many peripherals, na? As many peripherals as you like. ठीक है? पास में आते हैं? तो आपके पास आजकल आपको डिजिटल डॉल भी साउंड करना है, तो आपके पास डोंगल आता है, यूएसबी में डालो, वो आपको डिजिटल साउंड करके देगा. So what are we doing? We are putting up the new input output interface, which can interact with the speakers and all. 7.1 surround sound मेरा speaker है, तो वो काम कैसे इंटरफेस उसका होगा, तो उसमें डोंगल लगाएंगे यूएसबी में, सो वो इंटरेक्ट करेगा सीपीयू के साथ, सीपीयू करेगा वो डोंगल करेगी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ. तो हमें सीपीयू को चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो अगर हमारा लॉजिक सीपीयू में ही लगाना था, तो डिफरेंट काम, जैसे मैंने कहा टीवी ट्यूनर कार्ड मुझे लगाना है, सो फिर मैं टीवी नहीं देख सकता, मुझे डिफरेंट सीपीयू लाना था जिसमें वो फंक्शनैलिटी होगी. अब हम करते हैं काम कि नहीं, सीपीयू वही, आप सिर्फ इंटरफेस चेंज करो, इंटरफेस नया लाओ जो उसके साथ काम करेगा, एंड इंटरफेस खुद सीपीयू के साथ काम करेगा, बिकॉज सीपीयू इज अ जनरल पर्पस नाउ. एनी क्वेश्चंस? Now we have, this is our input output module. Is this are slides visible? Yes sir. Yes, sir. जो स्लाइड्स जो बनते हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा वन आवर लग जाता है मेरा, लेकिन the thing is that it saves our time and it gets concept very clear into the students. So I later on send you these slides to you, so make notes. Okay, इससे notes बनाओ. So ये input output module आपका है, which will link on one side to home the peripheral devices. Okay, and there is 3 control lines. That's what's called as a bus. We call this bus. We will talk about the bus shortly. We can have an address line, we can have data lines, we can have control lines. Okay, address line, data lines, and control lines. The bus, if we say a single bus structure, we'll see programmed input output and separate input. What is that? That is our first topic from a syllabus. I was seeing the syllabus. So उसमें जो हमारी पास बस है, the bus is a transmission lines, ठीक है ना, जिससे डेटा पास होगा. So वो तो या तो डेटा पास होगा या तो एड्रेस पास होगा, क्योंकि एड्रेस सिलेक्ट आपको करना है ना एड्रेस, तो वो कहाँ से होगा, उसके लिए एक एड्रेस बस होगी जो कि सिलेक्ट करेगी एड्रेस को, कहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो, कहाँ पे आप रीड करना चाहते हो या राइट करना चाहते हो. और कंट्रोल लाइंस, कंट्रोल क्या बताएंगी, क्या आप रीड करना चाहते हो, क्या आप राइट करना चाहते हो, ठीक है ना. देखो मैंने एक फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेमोरी का कैश मेमोरी या रैम थी या कुछ थी, वो सिलेक्ट कर लिया, आई सिलेक्टेड दैट, ठीक है ना, यूजिंग द एड्रेस बस. आई सिलेक्टेड कि मैं किस एड्रेस पे राइट करना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ मैं, व्हाटएवर, मैंने वो सिलेक्ट कर दी मेमोरी. मैं डेटा को पास करूंगा, लेकिन क्या मुझे रीड करना है या राइट करना है, क्या मुझे इस एड्रेस से पढ़ना है या इसमें डालना है, वो कौन बताएगा, कंट्रोल लाइंस. द कंट्रोल लाइंस विल टेल अस कि is it read or operation or is write operation, am I done, is RAM ready. There are a lot of things to be do on the control signal. Control line not only says कि क्या read can write, it will also say कि करा right में इच्छा ready किन आत्मा आचरण बदल क्या किस. Do you understand? अगर एक पेज फॉल्ट आओ उसको बेक जाए ना वेट तिल करो बस रीड करा मगर आता पेज फॉल्ट you should I think in virtual memory must ikachwanu I have to fetch it from the virtual memory. You understand? So what will control line say? Wait, not ready. You understand? When the data comes into hit, now read, now go for it. So signaling and all this is all done with control lines. Does it make sense what I'm saying? Now what will the input output modules can be called as? They can be called as input output channels or input output processors, because we talked about that earlier. We have just a controller or device controllers. We had what? Device controllers. We just control simply things. Also the CPU was doing the whole job, was doing the CPU was doing maximum job.
maximum job was doing what? CPU. Okay, and controller was like only that the format transmission, जो कि different format है, उसको उसके ऊपर काम करना, और ये कि ready है कि नहीं है कि क्या है. लेकिन जब आपके पास इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स और चैनल्स आ गए, it takes on most of the detailed processing. Okay, so it is a high level interface to CPU, because जो आपके पास अब जो मेरा ये मेन CPU है, ओके, मैंने यहाँ पे एक इनपुट आउटपुट जो मेरे पास एक मॉड्यूल है, ये खुद एक IO प्रोसेसर है, जिसकी जैसे हमारे ग्राफिक्स कार्ड होते हैं, उनकी 8-8 GB की रैम खुद की होती है, और इतने बड़े फास्ट प्रोसेसर होते हैं कि जो पुराने लैपटॉप्स हमारे थे उनसे बहुत फास्ट प्रोसेसर्स, ठीक है ना, जो ग्राफिक्स कार्ड में लगे, एंड इट इज डूइंग डेडिकेटेड जॉब ऑफ ग्राफिक्स. सो व्हाट विल हैपन इफ आई डोंट, बिकॉज़ ग्राफिक्स में बहुत प्रोसेसिंग लगती है आपकी, अगर मैं वो सारी प्रोसेसिंग इस CPU से कराऊंगा, स्पीड गैप छोड़े, फॉर्मेट छोड़े, ठीक है ना, अगर मैं वो काम CPU से कराऊंगा, मैं कह रहा हूं कि काम एक तो हो गया कि स्पीड के लिए मैंने कर दिया बफर्स वगैरह, एक दूसरा हो गया कि फॉर्मेट डिफरेंट थे, ठीक है ना, टीवी ट्यूनर अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, ये डिवाइस वो डिवाइस अलग काम कर रहा है, प्रिंटर अलग काम कर रहा है, प्लॉटर, तो वो लॉजिक मैं इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में रख रहा हूं, तो काम तो फिर भी CPU को ही करना है ना, ठीक है ना, बस में आ रही है, काम तो फिर भी CPU को ही करना है. लेकिन अगर मैं ग्राफिक्स का काम मेन CPU से कराऊंगा ना, तो हमारा सिस्टम बड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है. जो ग्राफिक्स का मैं सारा कराऊंगा, क्योंकि आप देखते हो कि भाई अब गेम नहीं चल रहे मेरे में, क्यों, मेरा जो प्रोसेसर है इतना फास्ट नहीं है, क्यों, आपका CPU सारा काम कर रहा है ना ग्राफिक्स का, उसको इधर से अपने काम भी कर रहे हैं, उसका इधर का अपना जो आप काम, यहाँ बाकी सारे काम जो सिस्टम चलाने के हैं वो तो कर ही रहा है, वो एडिशनल आपको वो ग्राफिक्स में गेम चल रही है आपकी, उनमें बड़े इंटेंस ग्राफिक्स हैं, वो भी कर रहा है, तो वो बॉग डाउन होके स्लो हो जाता है सिस्टम, वो काम ही नहीं कर पाता. तो हम अब ये भी कह रहे हैं कि इसको कि नहीं, तू इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग छोड़ के इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग वो भी छोड़, ठीक है. एक तो हो गया इनपुट आउटपुट इंटरफेसिंग, दूसरा हो गया इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, जो कि वो कर रहा था, CPU पहले कर रहा था, CPU इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर रहा था, इंटरफेसिंग छोड़ दी थी. अब हम उसको बोल रहे हैं कि तू इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग भी छोड़, यानी कि यहां पे इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग is done by the input output processor, and also Modules. input output interfacing तो कर ही रहा है, वो तो करनी है हर सूरत में, ठीक है ना. लेकिन प्रोसेसिंग भी कौन कर रहा है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर. आजकल आपके ये तो ग्राफिक्स तो है मशहूर ही है, इवन साउंड के लिए भी हमारे पास अलग प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है. आजकल 4K आपको ग्राफिक्स आता है, जो टीवी ट्यूनर कार्ड्स आते हैं USB के अंदर, जो कि हमारे पास टीवी लाते हैं आपके इसमें लैपटॉप्स में वगैरह. जब 4K टीवी आपको लाना है, इट्स अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेंस प्रोसेसिंग, सो इट नीड्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोसेसर, सो दैट हमारे पास एक यानी कि रैम हो, बफरिंग हो वगैरह वगैरह, ताकि पिक्चर क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट आए. So do you understand? So we have evolved to as input output processor rather than just a simple device controller or IO controller. ये समझ में आ रही है? Saeed, Saimoon and Moomin, just open cam. I will take a one video shot. Just now pic. Saeed, Saimoon, don't keep it off. Moomin, yes. Why are you keeping it off? I don't understand. Let me take one screen. This is the print screen. Yes, I ask now a question to Saeed Arifa. Saeed Arifa, बेटा आपको समझ आ गया हम क्या कर रहे हैं? Yes, sir. Can you tell me why we need a input output processor and what is the difference between input output processor and device controller? दोनों हमारे पास input output interface और input output modules है, ठीक है ना. पहले मुझे ये बताओ कि input output module की क्या जरूरत पड़ी, CPU क्यों नहीं काम कर रहा है input output का. शाबाश. कोई बात नहीं, just try a little bit, you can do it. इनपुट आउटपुट मॉड्यूल की हमें क्या जरूरत पड़ी CPU के साथ लगाने की?
कोई काउंट डिटेल मैं कह रहा हूँ जैसे यहाँ पे ये डायग्राम दिख रही है, ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये प्रिंटर है, ये मैग्नेटिक डिस्क है, मैंने इनके सब इंटरफेसेस लगाए हैं ना आगे। फिर प्रोसेसर डायरेक्ट काम नहीं करता कीबोर्ड पे, प्रिंटर पे, मैग्नेटिक डिस्क पे, बीच में इनपुट आउटपुट इंटरफेसेस है, आईओ इंटरफेसेस है। व्हाई सो? हमने क्यों लगाए? कौन बताएगा? वॉलंटरली बताए। कोई बात नहीं बेटा, मसला नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, जस्ट ट्राई So in order to catch speed, Sir, बहुत सारे स्पीड डिफरेंस को मैनेज करने के लिए। यस, स्पीड डिफरेंस को मैनेज करने के लिए एक तो ये हम पॉइंट है। मोर दूसरा ज्यादा पेरिफेरल More डिवाइस से peripheral- कम्युनिकेट कर सके सर। different data types थे। डिफरेंट हमारे फॉर्मेट्स, पास डिफरेंट नॉट डेटा टाइप, फॉर्मेट से डेटा We can डेटा communicate with more और peripheral device. डिफरेंट Data- पेरिफेरल्स से। मुख्तलिफ different पेरिफेरल हो peripherals सकते के हैं, देयर कैन बी न्यू पेरिफेरल्स कमिंग अप ऑल द टाइम। अगर Yes, न्यू sir. पेरिफेरल्स आ रहे हैं, अगर मैं वो लॉजिक, अगर मैं पेरिफेरल लॉजिक बिल्ड करूं किसमें, देखो सईद CPU, आरिफा फॉर इसमें- एग्जांपल processor सईद में। आरिफा बोल रही है चाइनीज, ठीक है, मेरा एक डिवाइस है, ये इंटरेक्ट करता है विद सईद आरिफा, ये हो गया इनपुट आउटपुट, ये हो गया सीपीयू, और मैंने चाइनीज में कैसे बात करनी है ना वो इस सीपीयू में डाल दिया, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस एज दैट processor is interacting with Saeed Arifa, but Saeed Arifa is talking in Chinese. So Chinese में कैसे बात करनी है, मैंने इसको सर्किट बना दिया, ठीक है ना। अब यहाँ से आ गई ताइबा वानी जो कि जापानीज बोल रही है, कैन दिस पीस ऑफ डिवाइस वर्क विद द ताइबा वानी? नो, No, sir. क्योंकि मैंने जो इनपुट आउटपुट का जो लॉजिक है वो इसमें इनबिल्ट कर दिया। Yes, sir. Now I can, if I have to talk with Tabiya Wani, I have to throw it off. I got to get a new device, okay, and which will talk with the Tabiya Wani. Yes, sir. You understand? So यानी कि जो आपके इनपुट आउटपुट्स हैं, ये बात समझे आप, ये तो सिंपल है ना, आप समझे, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा, डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा, लेकिन आप बी इंटरेक्टिव, व्हाटएवर द स्टूडेंट्स हियर आर, वी शुड ऑल बी लर्निंग, ठीक है ना, नॉट लाइक जस्ट सिटिंग इन अ क्लास जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिटिंग, एंड दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन डू इट, किसी को भी समझ आ सकता है, कोई, दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, कि हमारे पास जो सीपीयू है उसको इनपुट आउटपुट क्या बोले तो क्या इनपुट आउट बोले तो, हाँ सही तरफ, ओपन योर माइक, ताबिया वानी ओपन योर माइक, आरिफा बेग, तंजीला फारूक, सईद साइमूना, असरा, फिजा, एवरीबॉडी ओपन योर माइक एंड टॉक। सो मैं कह रहा हूं कि इनपुट आउटपुट क्या, कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट, कीबोर्ड, माउस। Monish. अब माउस के साथ काम करना है, जो माउस के साथ काम करना है क्या वो इस पेन के साथ काम करना है? जो माउस काम कर रहा है क्या वही पेन भी माउस का ही काम कर रहा है, लेकिन पेन राइट कर रहा है वगैरह Right. वगैरह, इस राइटिंग पैड पे लिख रहा है। तो इस राइटिंग पैड पे जो ये लिखना है ना, बस में आ रही है, जो राइटिंग पैड पे लिखना है, ठीक है, ये डिफरेंट Yes, काम sir. है ना, लॉजिक, जो माउस का है डिफरेंट लॉजिक। अगर मैंने ये ब्लूटूथ का हेडफोन लगा लिया इसमें, आई कनेक्ट ब्लूटूथ विद माय दिस, आई एम पुटिंग अप द ब्लूटूथ, और मेरे पास अभी हेडफोन लगा है ये वाला, मेरे पास माइक लगी है, ठीक है, क्या ये सारे एक ही काम कर रहे हैं?